갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Students, welcome in the next session of the solid state. Here we are coming up with continuously all entrance mass questions. That is, see here, one of the AIPME 2009 has one of the mass question. ऐसे सब क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रॉपरली इस तरह से रिवाइज करके जाएंगे, जीत अपनी है. See the question. AB crystallizes in the body-centered cubic lattice. Body-centered. With the edge length of A equals to 387 picometer, the distance between the two oppositely charged ions in the lattice is, don't have it, right? So body centered तो दिमाग में चल रहा है ना, चलो body centered बना, सही लो बना दिया. body centered में एक एटम बॉडी पे रहता है और बाकी सब ऐसे कॉर्नर पे रहते हैं. लास्ट टाइम CaCl किया था ना, वैसे CaCl, ये CCl और बाकी सब क्लोरीन, याद है? इसको A पकड़ लो, इसको B पकड़ लो, whatever you can say that. ठीक है? Now edge length A equals to 387 picometer. Now the distance between the two oppositely charged ion, मतलब ये ion का और ये ion का oppositely charged ion in the lattices, मतलब ये दोनों के बीच में distance निकालना है हमें. Simple. This is the radius, 2 diameter radius. Simple. No important thing is BCC देख के इतना तो आपको याद आता है, थोड़ी देर पहले किया था, राइट? Now A we have, that's a 387 picometer. What I'm doing, just simply एक दिमाग चलाना, radius is diameter by 2. diameter मतलब 2 diameter radius, diameter 2 diameter radius, diameter, simple. तो radius को diameter by 2, where diameter we want, that's it. So बाकी सबको उधर लेकर जाओ. That's a 2 root 3 मतलब 1.73. Now you know the factor of it. Now it's 2 into root 3 into A, that is 387 divided by 4 is the distance. 2 diameter, whatever. Simple? Great. अभी से कट कर दो फटाफट. चूजा से गया 193.5. Now so still this can be written as what? 7 by 4 into 193.5. थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं हम लोग, बट ठीक है, फटाक से आंसर पे आ रहे हैं. सर वापस 4 3s are 16, 3 4 8s are 32, 1 5 4 4s are 16. गड़बड़ हुआ वापस. See, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 7 8 19 3 and 3. So 4 8s are 32, 1 5 पॉइंट आएगा ना अभी, 4 4s are like that. तो 50 पकड़ना, 57 तो 350 है as yes, this is 350 के करीब. थोड़ा कम है ना, तो इट्स 335 तक हो जाएगा, राइट? इतना बड़े दिमाग में आपके. वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला में द डिस्टेंस कैसे निकालते हुए क्लियर हुआ. सिर्फ क्वेश्चन दिमाग में फिट कर रहा हूँ ना. सर सिंपल, रेडियस को डिस्टेंस बाय 2, डायमीटर बाय 2, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट, एंड डायमीटर आपको निकालना है 2 टाइम रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन, राइट? ग्रेट. मास और ही 2009 के मास क्वेश्चन ले रहे हैं. दैट इज इन अ ट्राइगोनल क्रिस्टल व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. रॉन्ग कौन सा है? So all the axial length and the axial angles are equal. All the 3 axial lengths are equal. All the 3 axial angles are equal. 2 axial angles are same and one is different. Now you know that from the definition trigonal का simple 7 previous lattice. Trigonal का क्या condition है बोलो? So trigonal is nothing but
A equals to B but not equals to C. बोलिए और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री से याद आया। और 7 का याद कर दो चलो। सो सिंपल क्यूबिक में ऑल एजेस आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम। ट्राइगोनल 2 edges are same, all angles are same. Orthorhombic, all edges are not same but angles are same. Monoclinic, all edges are not same and one angle differs, both rest two are same. One angle is not equals to 90 like that. Triclinic में all edges are not same, all angles are not same, they are not equals to 90. Rhombohedral, all edges are same, all angles are also same. सब एक ही एंगल फॉलो कर रहे हैं, एक्स अल्फा बीटा गामा सब एक ही एंगल फॉलो कर रहे हैं। हेक्सागोनल A equals to B not equals to C but alpha beta equals to 90 degree but and gamma equals to 120 degree. सारी कंडीशन याद है पापा सोला को। एंड हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इतना दिमाग में बैठने के बाद लेट्स हैव पास और एक क्वेश्चन है अपने पास। इन अ सॉलिड कंपाउंड XY हैज एन NaCl structure. If the radius of cation is 100 picometer, then radius of anion, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। So let me tell you, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, that is NaCl, रॉक सॉल्ट, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। रॉक सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर है, NaCl जैसा स्ट्रक्चर है, तो फॉर दैट सिंपल फॉर्मूला that is टू टाइम्स H equals to 2 times radius of cation plus radius of anion. सो कैसा है फॉर्मूला, ऐसे कैसे दी थी आपने? तो बहुत जन पूछेंगे ऐसा, बट उसके लिए मस्त समझा रहा हूँ, ध्यान देना बरोबर। NaCl का अरेंजमेंट सिखाता हूँ, ध्यान देना। तो इट्स सो सिंपली इसको और डीपली भी बात करेंगे अपन, पहले फिलहाल इतना याद रखो, ये सारे सेंटर ऑफ एजिस पे सोडियम है NaCl के स्ट्रक्चर टाइप में। बीच में सेंटर ऑफ एजिस पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है। सो इन दैट सब जान दो भी, फिलहाल इतना दिमाग में फिट करो कि सोडियम प्लस कहां पे रहता है, ऑलवेज सेंटर ऑफ एजिस में। एंड दिस इज योर क्लोराइड आयंस, बराबर। चलो भी दिमाग चलना चाहिए आपका। दिस इज योर एज, सो कैन आई से दैट दिस एज equals to 2 times chloride ions का रेडियस। अरे यार रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इतना, रेडियस ऑफ 2 times radius of chloride ion, this is diameter is 2 times radius of sodium, 2 times radius of chloride ions. So can I write 2 times radius of sodium plus radius of chloride ions? Very simple. तो NaCl में ये पॉसिबल है because NaCl में this is octahedral void is occupied by the sodium. तो सारे देखो लास्ट सेशन में टेट्राहेड्रल की बात की थी, वैसे आगे क्वेश्चन आने वाले ऑक्टाहेड्रल की भी बात करेंगे, पर अभी दिमाग में फॉर्मूला फिट होना चाहिए बस। सो ये एज सर दिया है हियर, इफ द रेडियस ऑफ cation, अभी देखो इसमें है ना एज दिया नहीं है आपको, एज नहीं दिया है इधर, इसके लिए फिलहाल नहीं कर पाएंगे आप। सर अभी क्या करें, तो दिमाग में फिट रखना है क्या, जरा वो टेबल याद करो आप NaCl में, दैट इज रेडियस ऑफ cation प्लस रेडियस ऑफ anion हैज टू बी, अगर सर ये 0.414 से 0.732 के बीच में है, रेडियस रेशियो याद है, रेडियस ऑफ cation अपॉन रेडियस ऑफ anion का आंसर अगर ये रेंज में है तो ही सोडियम को अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डाल सकते हैं, राइट? ओके, सो हियर लेट्स से मिनिमम वैल्यू पकड़ के चलते हैं, 0.414 तो होना चाहिए, तो ही आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डाल पाओगे। तो अभी ये एक फॉर्मूला से भी आप आगे बढ़ सकते हो, दिमाग में दोनों फॉर्मूला रखने, अभी जो सिखाया था वो भी और ये भी, दोनों सीखते जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा। तो इधर रेडियस ऑफ cation दिया है 100 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ anion ढूंढना हो सकता है बेटा, 0.414 हटाओ ना यार, 414 फटाफट सर अभी हो गया, हमको आ जाएगा सर। अभी ये से पॉइंट को आगे लेके 10⁻⁻1 ऊपर रहेगा 1000,
So 1000 by 4 that's 250. ठीक है ना? ऐसे ये डिनोमिनेटर को बढ़ाते थे थोड़ा सा डिनोमिनेटर को बढ़ाया, थोड़ा डिनोमिनेटर थोड़ा बढ़ाया तो आंसर थोड़ा सा कम होगा 250 से, लाइक दैट. सो 250 से थोड़ा सा कम, दैट इज कम वाला थोड़ा सा लेना पड़ेगा हमें आंसर, नॉट ज्यादा वाला नहीं. क्यों? वही सिखाया मैंने. 0.4 कंसिडर किया था ना इसको मैंने, मतलब इसके लिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंसर है. ये डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा आंसर कम हो जाएगा, थोड़ा सा 250 में से थोड़ा सा कम, यस 241.5. तो इस तरह से बहुत जन पूछेंगे सर इधर 0.732 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको पता है 0.732 पे नेक्स्ट कंडीशन CHCl वाला टेबल याद करो ना, पहले B2O3 का कंडीशन था, फिर ZNH का कंडीशन, फिर ये NaCl का कंडीशन, और फिर अपना वो CHCl वाला. तो 0.732 में नीचे चले जाता है वो, ऑक्टेटल वॉइड नहीं ऑक्यूपाई करते, क्यूबिकल वॉइड पे आ जाता है वो, राइट? दिमाग चल रहा है अभी? हियर ऑलवेज मिनिमम वाला है पकड़ के चलना, ऑलवेज कभी भी न्यूमेरिकल में, राइट? दिमाग भी बैठा. इस तरह से दोनों फॉर्मूला मैंने इधर बताया आपको, दोनों नोट डाउन किया जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन को इजी किया जाएगा. प्रॉपरली नोट डाउन करके जीत हासिल करके आना है. यस, नोट डाउन. क्वेश्चन लेके आपके साथ में आया हूं. जस्ट सी हियर द क्वेश्चंस ऑफ AIPMD 2012. Structure of mixed oxide is cubic closed packed CCP. The cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions. 1/4 of tetrahedral voids are occupied by divalent ions A, and yes, what octahedral voids are occupied by monovalent metal B. The formula of oxide is, so they are something A, B और oxygen. ये तीन चीज है ना, ठीक है? एक एक के पढ़ते हैं और उधर उधर उसकी जगह पे लिखते हैं सबके पास, ठीक है? भाई आपको इतना दिमाग में चलना चाहिए कि भाई चलो पहले पढ़ लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक. कभी भी CCP मतलब FCC, दिमाग पे चल रहेगा अभी. क्लोज क्यूबिक पैक मतलब FCC. The FCC, the cubic unit cell is mixed oxide. The cubic unit cell is mixed oxide is composed of oxide ions. मतलब सारी जो FCC की बड़ी बड़ी जगह है ना, याद रखना सब लेडाइज पॉइंट होते हैं वो, सो ऑक्यूपाइड बाय ऑक्साइड आयंस. क्लियर? सिर्फ 4 ऑक्सीजन हो गए, सब फेसिस एंड कॉर्निस मिला के आपको पता है ना 4 जगह है. तो द मिक्स ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब मिक्स ऑक्साइड, ऑक्साइड पूरा मिक्स मतलब ऑक्साइड पूरा फिट हुआ है FCC के अंदर, ठीक है? आगे. द 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट आयन A. 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. चलो याद करो, एक FCC में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड? सर 8. याद आया? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 8 आर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन वन FCC. याद आया? ग्रेट. नाउ एंड ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट B. सर एक FCC में 4 ऑक्टेहेड्रल वॉइड होते हैं और पूरा ऑक्यूपाइड, कुछ बोला नहीं है, मतलब कुछ बोला नहीं तो पूरा ऑक्यूपाई हुआ ना, ऐसा है. इधर कैसे बोला 1/4 ऑक्यूपाई किया, ऐसे कुछ बोला नहीं. तो इधर द पूरा ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय B, ठीक है? पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड बाय B. तो हाँ, तो अंदर कितने B समाये होंगे, मतलब B कितना फिट हुआ होगा अंदर? 4. ऑक्सीजन कितना होगा अंदर? 4. एंड दिस इज A इज ओनली 2. तो सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाओ फॉर द फॉर्मूला, दैट इज 1:2 डिवाइड बाय द होल थिंग बाय 2. सो आई हैव A, एक A के साथ B 2 होंगे और यस ऑक्सीजन 2 होंगे, एंड दिस इज माय फॉर्मूला. इस तरह से इजी वे में मैं फॉर्मूला पे आ सकता हूं. जस्ट दिमाग में एक FCC में कितने,
देखा ना लास्ट सेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, वही चीज रिपीट हो रही है। तो आप बोलोगे इतना पढ़ के गए तो नहीं जीत हो सकती है हमारी, सिंपल ना। तो ए बी टू O2 इज देयर, यस सर वी गॉट इट, दैट्स डन। चलो ग्रेट। नेक्स्ट, in a BCC structure the contribution of corner and the central atom is, see देखो क्वेश्चन एम्स 2012 कितना इजी है। सी क्या पूछा है बीसीसी स्ट्रक्चर में, बीसीसी स्ट्रक्चर पता है ना आपको, ऐसे बीसीसी स्ट्रक्चर द कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर, या कॉर्नर आपको पता है कॉर्नर, हर एक कॉर्नर 1/8 ही कंट्रीब्यूट करता है। सो कॉर्नर इज 1/8, तो आपका ये 1 और 3 ऑप्शन राइट है। फिर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे पूरा एक आ जाता है, ऐसे बहुत बार किया है बीसीसी में हमने, तो सेंट्रल एटम में पूरा एक आ गया, तो यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एंड सेंटर पे हाफ नहीं होता है, पूरा होता है राइट इन द बीसीसी की, इतना दिमाग चला आपका। इजी क्वेश्चन है, मस्त करके आ सकते हैं एग्जाम में। सी द नीट 2013, which of the following statement is incorrect? So the question, statements about the interstitial compounds, interstitial compounds simple अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील ले लो सर, ये स्टेनलेस स्टील पता है ना, फेरस कोबाल्ट निकल फिकोनी, फेरस कोबाल्ट निकल सब मिक्स किया, सब ऐसे बड़े बड़े पॉइंट पर सब फेरस निकल सब ऐसे पूरा जमा हुआ है, ठीक है। सब ये क्या है सर, फेरस कोबाल्ट निकल, फेरस कोबाल्ट निकल सब ऐसे भरे हुए हैं। सब बीच में कितनी सारी जगह वेस्टेज गई है राइट, दैट इज ऑक्यूपाइड, वो छोटी छोटी जगह को इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, और वो ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन, कार्बन छोटी छोटी जगह called as interstitial compound, छोटी छोटी जगह इंटरस्टिशियल छोटी छोटी लोग ने दे दी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इतना दिमाग बैठा। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड स्टेनलेस स्टील, इसके बारे में क्या गलत है वो बताओ। तो दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, नहीं, ये अंदर कार्बन आ गया, कार्बाइड्स बना दिया, आजू बाजू को एकदम और टाइटली होल्ड कर दिया, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल। तो फिकोनी का प्योर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज्यादा स्टेनलेस स्टील का होगा राइट, याद रखना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर आ जाने के बाद एकदम हार्ड हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाता है देन देयर प्योर कंपाउंड राइट। चलो तो ये दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, ये राइट है, हाँ सर ये राइट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है बट, तो आप ये राइट का मतलब आंसर ऐसा नहीं मत समझना वरना वो गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज राइट स्टेटमेंट, दे हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स प्योर मेटल, दे रिटेन द मेटालिक कंडक्टिविटी। हाउ, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेनलेस स्टील देखो कंडक्टिव है नहीं, जो प्योर मेटल था वो कंडक्टिव एक बार हो सकता था, बात समझे आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, नो, स्टेनलेस स्टील एकदम टाइट हो गया है, दे आर, अब फिकोनी वेरी मच, दे ऑल आर वेरी मच कंडक्टिव। मेटल कितना कंडक्टिव होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके जो होता है ना वो एक दूसरे को टाइटली होल्ड करने में चले यूज हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिकोनी के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से टाइटली होल्ड करने में, हार्डनेस बढ़ाने में, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने में एकदम टाइटली होल्ड करने में लग जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी विल से दैट हियर दैट इज द मेटल हैज अ हायर कंडक्टिविटी देन दिस। तो दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, नो, मेटालिक कंडक्टिविटी इज मच मोर देन दिस ऑल अलॉयज, hence this is the wrong statement, let me mark this। बाकी दो भी राइट होने चाहिए। दे आर केमिकली रिएक्टिव, यस केमिकली दे आर रिएक्टिव बिकॉज छोटे छोटे अंदर कार्बन आ चुके हैं, छोटी छोटी और इंप्योरिटीज आ चुकी है, जो थोड़ा सा भी हीट देंगे तो वो सब बाहर निकलेंगे और रिएक्शन फटाफट करेंगे राइट। तो दे आर वेरी मच रिएक्टिव देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल एक ह्यूज फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, यस ये कितने हार्ड हो चुके हैं राइट। तो hence this statements
में से सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी मेटल जितनी रिटेन नहीं हो पाती है, दे आर लेस कंडक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से इजी है, सब भी आपको पता है, राइट।